مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جو سب سے پہلی چیز SOPs کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ SOPs کا مطلب احتیاط کرنا. اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے. وزیر اعظم نے کہا عوامی مقامات پر ماسک کے بغیر جانے کی اجازت نہیں. عوام کو SOP پر عمل کی ذمہ داری لینا ہوگی ورنہ بڑا نقصان ہوگا. سب کچھ بند نہیں ہو سکتا, صرف ہاٹ سپاٹ بند کریں گے. ٹائیگر فورس کی رپورٹس پر ایکشن لیا جائے گا. لاک ڈاؤن کا مطلب ساری معیشت بند کرنا ہے. ہم سے پوچھیں بجٹ بنانے میں کتنی مشکلات پیش آئیں. عمران خان کا تمام صوبوں کے دورے کرنے کا بھی اعلان. وزیر اعظم کی پنجاب حکومت کو جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہدایت. لاہور میں مقامی حکومتوں سے متعلق اجلاس کے دوران کہا بلدیاتی نظام جلد فعال کر کے عوامی مسائل مقامی طور پر حل کیے جا سکتے ہیں. وزیر اعظم کو بتایا گیا بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے قانونی انتظامات کیے جا رہے ہیں. حلقہ بندیوں پر کام جاری ہے جو 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. لوکل باڈیز الیکشن سال کے آخر تک ہو سکتے ہیں. وفاقی وزیر حماد اظہر نے پروگرام مقابل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا, ریکوری کی طرف جا رہے تھے. ہم 4800 ارب کا ہدف حاصل کرنے جا رہے تھے. 900 ارب روپے کا نقصان ہوا. سندھ ناکامیوں کو پراپوگنڈے کے پیچھے نہیں چھپا سکتا. پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی ٹیکس ہدف پورا نہ کر سکی. وفاق صوبوں کا 1 پیسہ بھی نہیں روک سکتا. بلاول بھٹو کا کہنا ہے صحت اور زراعت کو نقصانات ہوں گے. عوام نے مزاحمت نہ کی تو قحط جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ملک کو تباہی کی سمت ڈال دیا گیا. طبی عملے, تنخواہ دار, پینشنرز اور پسماندہ افراد کو نظر انداز کیا گیا. پینشن نہ بڑھا کر بزرگوں کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی کا پارٹی ارکان پارلیمنٹ کے ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب. پنجاب کا بجٹ تیاری کے حتمی مراحل میں داخل ہو گیا. مجموعی حجم 2381 ارب روپے رکھنے کی تجویز. جاری اخراجات کے لیے 1780 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 287 ارب روپے ہوگا. تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز. بجٹ میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی. پولیس کو 17% اضافے سے 132 ارب دینے کی تجویز. کاروبار کے لیے 30 ارب کا پیکج اور 15 ارب کا ٹیکس ریلیف دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ برس تک کھوکھلے نعروں سے بہلایا گیا. جنوبی پنجاب کی ترقی کے نام پر فنڈ اپنے حلقوں پر لگائے گئے. ترقیاتی فنڈ کی غیر منصفانہ تقسیم کا باب بند کر دیا. اپوزیشن کو ٹیکس فری بجٹ پر تنقید زیب نہیں دیتی. عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی پیش رفت پر تبادلہ خیال. میلبرن کی سڑکیں پاکستانی کرکٹرز کے نام سے منسوب. نئی سوسائٹی نے سڑکوں کو عمران خان, وسیم اکرم, انضمام الحق, جاوید میاداد اور شعیب اختر کے نام پر رکھ دیا. پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ دیگر ممالک کے کھلاڑی بھی شامل. میلبرن شہر کی میئر کا کہنا ہے کھلاڑی پہلے ہی مقبول ہیں. دوسرے علاقوں کے رہائشیوں کو بھی اس پر فخر ہوگا. یوسف زئی اور کوئٹہ میں فضل تراب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں راہم یوسف زئی سے جو کہ پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, وہاں سے تفصیلات دیں گے. راہم بتائیے گا پشاور میں پیٹرول کی کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, आज 13वीं रोज भी खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल की किल्लत जो है उसमें कोई किसी किस्म की कमी का सामना नहीं हुआ है। आज भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरों में, पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप से वहाँ पर पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। आधे घंटे तक और एक घंटे तक जो है मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले इंतजार करके बिलाखिर उसको पेट्रोल मिल जाता है। अगर हम निजी पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पर तो पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो चुका है। वहाँ पर हर दूसरे पंप पर वहाँ पे आर्जी तौर पर बंद है के बोर्ड लगाया गए हैं। चाहे वो किसी भी निजी पंप हो, वहाँ पर उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन हमारे पास 6 से 8 हजार लीटर पेट्रोल तो आता है, लेकिन वो 1-2-3 घंटों में खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सप्लाई नहीं होती, उस वजह से उनको पेट्रोल पंप जो है बंद करना पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि आज अगर इसी तरह ये सिलसिला रहा तो उनके कारोबार जो ठप होकर रह जाएंगे। बावजूद इसके कि हफ्ता और इतवार को यहाँ पर तो लॉकडाउन होता है, लोगों का इतना जो है वो लोगों की इतनी सरगर्मियां नहीं होती, रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो सिर्फ सफर हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते और इतवार को तो मार्केटें बंद होती हैं, सिर्फ मेडिसिन की दुकानें खुलती है, लेकिन उसके लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप से अगर कहीं पे पेट्रोल मिलता है तो वो है सिर्फ सरकारी पंप से, और वहां पर भी कहीं ना कहीं पे जाके आधे घंटे और 1 घंटे के बाद किसी को पेट्रोल मिल जाता है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फजल तवाब, कोयटा में मौजूद हैं। फजल, बलूचिस्तान में अब पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल क्या है? कुछ बेहतरी आ सकी है या नहीं, और क्या कीमतें कंट्रोल की जा चुकी हैं? देखिए, इस तरह है कि पेशावर की तरह कोयटा की सूरत हाल भी जूं की तू है, और यहाँ पर भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत जो है वो बरकरार है। वो कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर पेट्रोल नायाब हो चुका है। पिछले 30 से 35 मिनट हो चुके हैं कि मैं कोयला पाटे के पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल और रक्षा ड्राइवर जो है वो यहाँ पर आए, और उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने शहर के 5 मकामात, एयरपोर्ट रोड, आलमो चौक, सरियाब रोड, जरगून रोड के पंप्स पर का चक्कर लगा चुके हैं, मगर वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो चंद मकामात पर खुले पेट्रोल पंप्स पर भी गाड़ियों, रक्षों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई है, और घंटों पेट्रोल के हसूल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान का यही कहना है कि जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो चंद ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी मुतालबा किया है कि जो स्टॉक है, जो तरसील है, उसे बढ़ाई जाए ताकि हम पेट्रोल पंप्स खोल सके। इस तमाम तर सूरत हाल में बारहा हम कह चुके हैं, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि चंद मकामात पर हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो फी लीटर 155 रुपए, और ईरानी जो ब्लैक पेट्रोल है वो 120 से 125 रुपए में सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की ना की नीचे तमाम तर सूरत हाल ज़िला इंतजामिया और पुलिस देख रही है, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उस हवाले से अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साथ ही काबीना के किसी भी रुकन ने वफाक से राब्ता नहीं किया है, और ना ही अब तक कोई नोटिस लिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को अवाम के फलाह बहबूद और मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी PSDP में जो है अपनी स्कीमात शामिल करवाने हैं। शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं और शहरियों को पेट्रोल के लिए खारी का सामना करना पड़ रहा। हम यूसुफजई पेशावर और फजल तवाब कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। है कि जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो चंद ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी मुतालबा किया है कि जो स्टॉक है, जो तरसील है, उसे बढ़ाई जाए ताकि हम पेट्रोल पंप्स खोल सके। इस तमाम तर सूरत हाल में बारहा हम कह चुके हैं, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि चंद मकामात पर हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो फी लीटर 155 रुपए, और ईरानी जो ब्लैक पेट्रोल है वो 120 से 125 रुपए में सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की ना की नीचे तमाम तर सूरत हाल ज़िला इंतजामिया और पुलिस देख रही है, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उस हवाले से अब
तक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साथ ही काबीना के किसी भी रुकन ने वफाक से राब्ता नहीं किया है और ना ही अब तक कोई नोटिस लिया गया है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत को अवाम के फलाह बहबूद और मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी PSDP में जो है अपनी स्कीमात शामिल करवाने हैं। तो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उस हवाले से अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साथ ही काबीना के किसी भी रुकन ने वफाक से राब्ता नहीं किया है और ना ही अब तक कोई नोटिस लिया गया है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत को अवाम के फलाह बहबूद और मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी PSDP में जो है अपनी स्कीमात शामिल करवाने हैं।